تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی۔ دوستو آج ہم لائے ہیں ساقی مصطفی کا ایک نیو بیان، تو آپ پہلے اس بیان کو سنیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات۔ چلو کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور ملتے ہیں ویڈیو کے آخر میں۔ اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی، یا وہ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی۔ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ 500 600 لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں، اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں۔ نکاح فی المساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مروج سلسلہ ہے، اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں۔ آج 1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں۔ تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں، اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیے، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑھا۔ تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہو۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں
इन बेटियों के माँ बाप को तुमने कुछ पेश किया होता और ये अपने घर से रुखसत होती तो अर्श वाला रब बड़ा राजी होता। लेकिन बुरा करे नुमाइश का कि हमने उन बेटियों का तमाशा लगा दिया। मैं एक शहर में गया तो वहाँ आजकल वो पहले था ना उम्रे के टिकट महफिल नात में, तो आहिस्ता आहिस्ता मजमा सिमट गया। तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जहेज़ की पर्चियाँ निकाली जाएंगी। तो इसी साल आपके कुरब में एक जगह 10 के 15 जहेज़ फंड थे, तो मुझे खिताब करने के लिए उन्होंने कहा, तो बड़े शौक़ से मुंतज़िम महफिल ने बताया कि 15 बच्चियों का जहेज़ भी निकाला जाएगा और इस पर्दे के पीछे हज़ारों बच्चियां बैठी हुई हैं। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जुल्म ना करो, ये ज़्यादती ना करो। तुम्हारे पास 100 लोगों का खाना है तो 500 लोगों को ना बुलाओ कि तुम कुरा अंदाजी करके 100 आदमियों को खाना दे दो और 400 आदमियों को कहो कि तुम्हारा नाम नहीं निकला। तुम्हारे पास 100 का खाना है तो 100 को ही पर्दे से बुलाओ और उनको खाना खिला दो। मैंने कहा 10,000 बेटियां इस पर्दे के पीछे बैठी हैं आपके बकौल, और आप उनमें से चंद को कुरा अंदाजी के जरिए जहेज फंड दे रहे हैं। हर पर्ची पे 10,000 बेटी का दिल धड़केगा कि शायद मेरे मुकद्दर जाग पड़े और गमों की स्यारात खत्म हो गई। लेकिन जब आखिरी पर्ची के बाद ऐलान किया जाएगा कि कुरा अंदाजी मुकम्मल हो गई, तो कितनी बेटियां घरों में जब वापस जा रही होंगी तो तुम नहीं जानते उनके कदम कितने बोझल होंगे। और रसूलुल्लाह का मीलाद हो और बेटियां आंसू बहाती हुई जाएं, तो मैंने कहा तुम खुशियां खरीदने लगे थे, गम खरीद लिए तुमने, खुशियां बांटने लगे थे, गम बांट लिए तुमने। तो ये ज्यादती ना करो। ये जो रवाज पड़ रहा है ये अपनी नुमाइश के लिए, खुदारा आगे तुमने उम्रे के टिकट बांटे, बहुत कुछ किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्या क्या रंग अपनाए गए। मैंने कहा वो अच्छा था, चलो मुझे उस पर भी बात है, लेकिन चलो मैं नहीं करता। लेकिन ये जुल्म ना किया जाए कि महफिलात में मजमा इकट्ठा करने के लिए जो है वो गरीबों की बच्चियां बुला करके तो 10 को आप दे के बाकियों कहें कि माजरत हमारे पास इतना ही था। तो आपके पास 100 का खाना है, 100 का पानी है, तो 500 प्यासों को ना बुलाएं, 500 भूखों को ना बुलाएं, 100 को ही बुला करके पर्दे से जो है वो उनकी मदद करें। तो मैं ये कहता हूं कि हम जहेज फंड देने की बजाय, ये जब तक ये हालात ख़त्म नहीं होते, हमें खुफिया तौर पे ये भी करना चाहिए। लेकिन सारी कौम इधर लग गई है, तो इसकी बजाय हमारे उलमा को, ज़िम्मेदार को, ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये जो टॉकिंग होती है इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस रस्म को ख़त्म किया जाए और मुआशरे की तरबियत की जाए कि बेटियों का रिश्ता इसलिए कबूल किया जाए कि वो दीनदार हैं, वो पर्देदार हैं, वो सुगड़ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं और उनके अखलाक अच्छे हैं। ये मायार बनाया जाए, दौलत को मायार ना बनाया जाए। इस तरह मुआशरे पिस जाएंगे और मुआशरे के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। और आज अंदाज़ा नहीं है हमको कि जिसकी बेटियां घर की दहलीज पे जवान है उसकी जिंदगी कितनी कठिन गुजर रही है। कोठे ते चढ़ वेख फरीदा ते घर कर बल्दी अग, मैं जाता दिल दुखी मेरा पर दुखी सारा जग। तो पूरा मुआशरा इस वक्त इस अजियत से, इस कुड़न से गुजर रहा है कि बेटियां जवान हैं और रिश्ते नहीं मिल रहे, और फिर अगर रिश्ते मिल रहे हैं तो बेटे वालों के नखरे ही बड़े अजीब हैं। और फिर जिस तरह वो बेटियों को, गरीबों की बेटियों को लौंडियां बना के अपने घरों में रखते हैं, तो ये एक अलग दर्द की और दुख की कहानी है। मेरे पास लोग आते हैं, दुआ कीजिए, कारोबार नहीं है, मुआशी बहरान है, माली परेशानियां हैं, बच्चे के इम्तिहान सर पे हैं, बहुत सारे मसाइल लेकर लोग आते हैं। लेकिन कोई नहीं, लोग हौसले से मसाइब का मुकाबला करते हैं, काटते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं दुआ के लिए तो बात करते ही आंखें छलकने लगती हैं और मेरा दिल भी काबू में नहीं रहता।
लोग कहते हैं कि हजरत दुआ करो, बेटी ससुराल में दुखी है, अल्लाह सुख दे दे। तो मैं दुआ भी करता हूं, लेकिन मैं तन्हाई में जाके रोता हूं कि इस दर्द का मदावा क्या है, इस दुख का इलाज क्या है। और मुआशरा तेजी से इस तकलीफ की तरफ बढ़ रहा है और तलाक की शरह भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मेरे पास एक दिन एक साहिब आए, साथ उनकी बीवी थी और मैं उन्हें जानता हूँ, इज्जतदार लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई तन्हाई में बात करना चाहते हैं। तो उनके अपने अजीज थे, बेटियां उस शख्स की ज्यादा हैं। अपने अजीजों में शादी कर दी तो उस वक्त उन्होंने तय कर लिया कि कोई बात नहीं, हम जहेज नहीं लेते। लेकिन वो बाप बिलक बिलक के मुझे कह रहा था कि कितने दिनों से मेरी बेटी घर आके बैठी हुई है और वो कहते हैं कि उतनी देर वापस ना आना जब तक तेरा जहेज पूरा नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूँ कितना सफाक मुआशरा हो गया है और कितने कठिन हालात हो गए हैं। तो जब मुआशरा इस कैफियत में चले जाए तो फिर अनारकी फैलती है और मुआशरे फिर कायम नहीं रहते। तो कितनी बाप की दहलीज पर बूढ़ी होने वाली बेटियां, उनकी सिसकियां, उनकी आहें और उनकी चीखें इस मुआशरे को बेचैन की हुई हैं। तो अमीर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के दुख बांट लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़क्कू रक़बह और इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बह, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना ये बड़ी नेकी है। तो इस वक्त गरीब की बेटियों का रिश्ता कोई कबूल नहीं करता। अगर कोई नौजवान और अगर कोई सरमायादार गरीबों की बेटियां कबूल कर ले तो ये उसकी मेहरबानी होगी। और अगर ये नहीं कर सकता तो कम अज़ कम उन बेटियों की शादियों का एहतमाम किया जाए, लेकिन ये मेहरबानी की जाए कि गरीबों की बच्चियों को नुमाइश गाह में ना खड़ा किया जाए और उनकी गुर्बत का तमाशा ना बनाया जाए। रात की तन्हाई में उनके माँ बाप की खिदमत की जाए ताकि वो अपनी बेटियों को इज्जत से उठा सके। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जिस शख्स ने तन्हाई में खैरात की कि दाएं हाथ ने जो खर्च किया बाएं को पता भी न चला, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। तो ये जो इज्तिमाई शादियों का माहौल है, तो अगर इसको हम इसमें तब्दील कर लें कि गरीबों की इज्जत नफ्स मजरू ना होने पाए, तो अल्लाह ताला ये तौफीक नसीब फरमाए और मुआशरे के अंदर ऐसे लोग निकलें जो मुआशरे के दुख बांट दें। और उलमा को मिंबर व महराब से ज़ोरदार आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो रस्म पैदा हो गई है जहेज़ की, और इसके बगैर बेटियां घर से रुखसत नहीं हो सकती हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए और इसके ख़िलाफ़ अमली जिहाद किया जाए। और उसके लिए अमीर लोग नमूना बने। गरीब लोग तो नमूना बन नहीं सकते, मुश्किल है उनके लिए, लेकिन अमीर लोग अगर नमूना बने तो वो बन सकते हैं और मुआशरे के इस नासूर को ख़त्म किया जा सकता है। और गरीबों की बेटियां इज्जत से अपने पिया घर सधार सकती हैं और उनको जो है उनके माँ बाप को तस्कीन की और चैन की नींद आ सकती है। आज मैंने निकाह के हवाले से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उन्वान इधर चला गया क्योंकि ये एक सुलगता हुआ मसला है और हमारे मुआशरे को काट रहा है और तोड़ रहा है। एक तो घरों की दहलीज पे बेटियां बूढ़ी हो रही हैं और दूसरा शरअ तलाक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता, सिर्फ 2-4 बातें कि तलाक अगरचे मर्द का शरई हक है और अगर निभा ना होता हो तो तलाक देना नागुज़ीर हो जाए तो तलाक देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स
अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहे तो क़यामत के दिन रब की रहमतों का हकदार होगा। जायज़ कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमर है वो तलाक है, और जब कोई शख्स तलाक देता है अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। इमराए मरदूदा उस खातून को कहते हैं जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और वो इस काबिल नहीं है कि उसका दोबारा निकाह हो सके। पहले ही बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, बदसूरत थी, जहेज नहीं ला सकी थी, तो पहले बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, अब तलाक हो गई तो अब तो और ज्यादा इम्कान मुश्किल हो गया। तो वो अपने बाप की दहलीज पे बैठ गई। आगे निकाह का इरादा भी नहीं है चूंकि इम्कान बाकी नहीं है। तो उस औरत को शरीयत में कहते इमराए मरदूदा, लुटाई गई खातून। हदीस में आता है कि कल इस खातून के बाप को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म होगा, तो ये जहन्नम और अपने बाप के दरमियान आड़ बन के खड़ी हो जाएगी और रब से बहस करेगी कि मेरे मालिक तू ना मुझे अकल दी ना तूने मुझे शक्ल दी। ससुराल ने कबूल ना किया और खामन ने दुत्कार दिया। ये एक बूढ़ा बाप ही था जो मजदूरियां कर करके मेरा पेट पालता रहा, इसके बड़े गुनाह होंगे लेकिन मालिक मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह से लड़ाई करेगी, बहस करेगी, अल्लाह अकबर, उलझाव पैदा कर देगी। हदीस में आता है अल्लाह उस खातून की सिफारिश मान के उसके बूढ़े बाप को जन्नत अता फरमा देगी। अगर तलाक देना नागुज़ीर हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए तलाक देना और उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी 3 तलाकें इकट्ठी ना दें। एक तलाक दे दें, और एक तलाक देने का फायदा यह होगा कि 3 महीने के बाद औरत फारिग है, आगे निकाह करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद उसने आगे निकाह नहीं किया तो दोबारा इनका प्रोग्राम निकाह का हो जाता है, तो फिर वापस आना आसान होता है। तो लोग यकमुश्त 3 तलाकें दे देते हैं और फिर मसला पूछते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ कसरत अहनाफ की है और वाज़े अहकाम जो शरीयत के हैं वो 3 इकट्ठी तलाकें अगरचे नापसंद हैं, लेकिन 3 तलाकें इकट्ठी 3 ही हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद अपना मसलक बदलने की कोशिश करते हैं, या जो है वो ऐसे लोगों से फतवा देते हैं जिनका ये फतवा नहीं है और एक अजीब उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अगर नागुज़ीर हो जाए तलाक देना तो फिर भी 1 तलाक देनी चाहिए। जो 3 तलाकों से हासिल होगा, औरत से अलग होना, वो 1 तलाक से ही हासिल होगा। और 1 तलाक भी तोहर की हालत में देना चाहिए, आलमे हैज़ में नहीं, चूँकि इन दिनों के अंदर मर्द का रुझान औरत की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए शरीयत ने तोहर में तलाक देने का हुक्म दिया है अगर कोई तलाक देना चाहे। लेकिन अगर कोई हैज़ में तलाक दे दे तो फिर भी तलाक हो जाएगी। 3 इकट्ठी दे दें फिर भी तलाक हो जाएगी। लेकिन 1 तलाक, और वो भी तोहर में अगर दी जाए, हाँ महीने महीने के वक्फे के बाद दी जाए, तो फिर भी मौका मौजूद होता है। तो अमूमी तौर पे लोग 3 तलाकें इकट्ठी दे के बाद में परेशान होते हैं, जो कि तलाक देने के बाद फिर पोजीशन सोच की और गुमान की और होती है। तो ये ज़रूरी बातें थी। कार मा आखिर शुदो आखिर से मा कार नशुद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये बयान कैसा लगा है। अगर आपको इसी तरीके के बयान सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।